Hello students, so today we'll be doing one of the most important topics of class 10 maths where most of the students have problem. ये एक ऐसा टॉपिक है जहां हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है. तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 आइडेंटिटीज. पार्ट 1 में विल बी डूइंग सम एंड देन पार्ट 2 वीडियो विल फाइंड अदर्स. Now I'll be also stressing how you go about doing these identities and give you some tips regarding it. Right now, first you need to note one thing. These are the only identities, in fact 1 2 3 and the sub part. Now this is one of the important identities. Sin square theta plus cos square theta is 1, and then we have to observe these two factors, because in most of the questions you will find 1 minus cos square theta or 1 minus sin square theta being used at some or the other place. Then you have this identity 1 plus tan square is equal to sec square, and this is very important. In one of the questions, the role of 1, okay, so we'll see the role of 1 being used in a very different way, so you have to note this one particularly, and the same goes here and this one out here. So this is how we go about it. These identities are derived from here. If you remember this, just divide by sin square theta, so it will become 1. It will become cot, you will get this. Just divide by cos square, you will get tan square plus 1 equal to secant square. So that is where these identities are derived. So chaliye, let's go ahead and do our questions, and we'll be doing some of the important things. So this is the first question which I have taken up, very important, and we have to prove this identity. Now first you have to see what is RHS wanting, because based on that we proceed. So RHS wants tan. Now see the numerator nicely and denominator. Both places in numerator there is a sin coming, there is a cos coming. So when you have more than one term coming at two places, you need to take common. तो इसको हम common लेते हैं, है ना? तो सबसे पहला स्टेप बना sin a को हमने common ले लिया. ठीक है, स्मॉल लिखो बड़ा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, so this is one thing which we do as a first basic step. This question has come so many times in exam, so this is one of the important question. All questions today which I have taken are important. Now if I see my answer is here, tan तो आ गया, so logically क्या होना चाहिए? आंसर तो आ गया, इनको कटना चाहिए. आंसर तभी आएगा. ये साइन में है, ये कॉस में है. कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? किसी एक को सेम मिलाना है. तो इसको तो मैं tan लिख लेता हूं, फाइन. नाउ किसी को भी एक को चेंज करना है, इसको कर लो उसको कर लो, इट हार्डली मेक्स ए डिफरेंस. यू कैन डू एनीवन. 2 into 1 minus sin square a minus 1. Okay, so now see what I have used. Sin square a plus cos square a, देखो यहां 1 था ना, so we have used one of these identities. Okay, so that is what now we are here, right? So now this becomes same, so tan a 1 minus 2 sin square a as it is, because I'll be changing only the denominator part. So 2 minus 2 sin square a minus 1. Got it? So we have just expanded it. So now let us see. Answer will come its own. You don't have to now do anything. 2 sin square a. And again here you get 1 minus 2 sin square a. And this is equal to RHS. And children, please keep in mind, we cancel entire term. I have seen sometimes like students 1 minus 2 sin square a upon 2 sin square a here only. ये नहीं होता, इसको काटते हो. That is wrong, right? This is what the proof is. Now I'll tell you a technique to actually how to improve maths. Now what happens, आपने ये नोट कर लिया and then exam में यही identity आती है, you get stuck. Now what you have to do, if you have understood this problem, take a pause, don't look at the video, and now solve it yourself without looking. Because when you are looking and doing, you are being guided, and exam में वो part नहीं होता. So the best thing is now, don't look at the solution, try to do on your own, and when you get stuck,
then see which step caused problem, and that is the one जो exam में भी करेगा, right? And that is the way you should practice it. And once you do this problem today, tomorrow morning make sure without looking you do it once, and then automatically it will be easy for you to go ahead, right? So this is the problem. आपको जब भी आप कॉपी कर सकते हैं पॉज करके. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. So where is, oh, this is again one of the most important questions, right? So now you see these two factors itself will suggest. So when you have a plus up here, minus out there and a root, the only way to come out of root is square करके, तो rationalize होता है. So that is the only way out. ठीक है ना? अगर हमें बाहर निकलना है बच्चों, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सवालों में आपको रैशनलाइजेशन के अलावा कुछ नहीं सोचना. तो चलिए इसका रैशनलाइजेशन शुरू कर देते हैं. सो एज अ फर्स्ट स्टेप यू विल गेट 1 माइनस साइन ए, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगेन 1 माइनस साइन ए. समझ आ गया? कॉन्जुगेट. एंड व्हाट विल वी हैव इन द डिनोमिनेटर? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए. Okay, the root being extended here. This is a simple step. Now what will happen? Numerator 1 minus sin a का whole square. Why? A minus b into a minus b type है. So a minus b whole square. और ये क्या हो गया? A plus b into a minus b. So यहाँ क्या आएगा? 1 square minus sin square. A square minus b square. So now आंसर तो ये है ही. नाउ सम में सजेस्ट कि आंसर सर साइन कॉस में है, व्हाई यू डिड नॉट कन्वर्ट. देखो पहले मेरे को रूट हटाना है, देन आई विल कन्वर्ट टू सेक ए और tan ए. ठीक है ना? नॉर्मली हमको कुछ अभी दिमाग नहीं लगाना है. सो व्हाट विल यू गेट? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, एंड 1 स्क्वायर इज 1. नाउ व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1. So 1 minus sin square a will be cos square a. एंड एग्जाम में आपको लिखना है फॉर्मूला. इवन मैं पिछले में नहीं लिखा, ठीक है ना? यू हैव टू राइट दिस आइडेंटिटी, अदरवाइज मार्क्स वुड बी डिडक्टेड. सो इफ यू डोंट राइट द आइडेंटिटी देन योर मार्क्स विल डेफिनेटली बी डिडक्टेड. सो मेक श्योर. सो नाउ 1 माइनस साइन ए, रूट हट गया, स्क्वायर गॉन, एंड अपॉन कॉस ए. नाउ आंसर एज सच तो ओवर हो जाता, लेकिन उन्हें सेक में जाना है. तो अब देखो अलग कर सकते हैं ना. जैसे एलसीएम लेते हैं, डी एलसीएम का मतलब है टू सेपरेट. एलसीएम जोड़ता है और ये रिवर्स प्रोसेस उनको सेपरेट करता है. सो व्हाट इज 1 बाई कॉस ए? सेक ए, एंड माइनस tan ए, एंड दैट इज इक्वल टू योर RHS. एंड इसी से there are so many questions. Now I have put sin and sin. They can put cos and cos. तो और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं हो, तो सेम है. ओनली थिंग इज यू विल गेट ए cosec and a cot here. Now tell me what happens if I square it. Tell me. स्क्वायर करूंगा तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा? क्वेश्चन भी बनाना सीखो. अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं तो 1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है. वेरी गुड. इक्वल टू क्या बनेगा? सेके. व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? सेके माइनस tan a whole square. So this is another question you will get, right? So don't worry, they can ask this question also. It is one and the same thing. तब भी हम rationalize करेंगे and अपने आप वो square form में आएगा, रूट हट गया. So see, this question itself will lead you to 4 questions. 1 minus cos a वाला, then ये square वाला, फिर 1 minus cos a upon 1 plus cos a. तो इस एक question को आप कर लेंगे. तो this is very important and you all should do it. Especially जो basic पेपर दे रहे हैं उनको तो ये क्वेश्चन करना ही चाहिए. तो आज मैं ज्यादातर बेसिक और कुछ स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चंस टेकअप करूंगा. राइट? अगेन द सेम ट्रिक. डोंट लुक, डू इट ऑन योर ओन एंड सी द डिफरेंस. ट्राई दैट मेथड. डोंट लुक एंड डू. एंड हियर वी हैव, ओह लो क्वेश्चन ही आ गया जी. अब इसको मैं क्या करूंगा? मेरे को करने की जरूरत नहीं है ना, आपको RHS लेना है. सी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग LHS RHS. कभी भी ये मत सोचना कि ये इधर दिया मैं इसी से करूं. We can apply any method. So what I am going to do, RHS को मैं लेके, right, now I'll rationalize इसके conjugate से. You know the meaning of conjugate? You change the sign. That is the only thing and you get the conjugate.
and then you see you get this 1 minus cos a whole square and 1 minus cos square a, same as that, a plus b into a minus b. So now you see 1 minus cos a ऐसे ही रखेंगे भाई, होल स्क्वायर कुछ नहीं कर सकते. What you will get? Sin square a. Now if you see LHS, they have clubbed, बन गया. तो हम भी इसको क्लब कर सकते हैं. हम क्या करें स्टेप के बाद? 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर है अपॉन साइन ए कर दो होल स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस? अगर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है तो क्या हम उसको ए बाई बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं ना? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस. तो वही तो मैंने किया. अब क्या करना है? जुदा कर दो, सेपरेट कर दो, आंसर आ जाएगा. कैसे जुदा करेंगे? जुदा करना अच्छी बात नहीं होती, पर फिर भी जब कुछ भला हो रहा हो तो जुदा करके ही अच्छी बात कर देते हैं. एंड नाउ व्हाट इज 1 बाय साइन ए? कोसेक ए. एंड व्हाट इज 1 बाय कॉस बाय साइन? कॉट ए. सो दिस इज कोसेक ए minus cot a whole square. So after this just write it as cosec and cot and you get the answer. So that is how we go about doing this problem. तो ये हमारा आंसर आ जाता है. 1 by sin a cosec होता है और वो cot होता है, और हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं. एंड ये क्वेश्चंस आते हैं. डोंट रन फॉर एनी अदर बुक्स. एनसीईआरटी करिए, बेसिक पास्ट ईयर क्वेश्चन करिए. आप आर.डी. शर्मा इधर उधर की पहले किताबें करने लग जाएंगे, it is going to not fetch you any good marks. सिंपल बेसिक्स चलिए एंड बोर्ड में आपके नंबर ज्यादा आएंगे. कम पढ़ो, ज्यादा नंबर आते हैं. ज्यादा नहीं करना, ठीक है ना? बोलो सर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं. ऐसी ही तो बातें नहीं, ऐसा ही होता है. डू सॉलिड, ठीक है ना? ये लो एक और क्वेश्चन आ गया. cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए. तो ये तो बहुत छोटू है. आरएचएस लेके मैं कभी नहीं ले पाऊंगा ऐसे क्वेश्चन में. आई कांट टेक आरएचएस, मैं पहुंचूंगा ही नहीं बाबा. तो क्या है सिंपल कॉन्सेप्ट? कॉस साइन में तो ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं क्या करूं? अब कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम लेना है. तो हम इसका एलसीएम लेते हैं. एलसीएम होगा बाबा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए. ठीक है भाई. अब क्या करना है? इसको इधर ले आइए. तो कॉस ए इंटू कॉस ए बाबा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना. कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए. ट्रिग्नोमेट्री में एंगल मल्टीप्लाई नहीं होते. अब ये मत सोचना कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा. एंगल्स कभी मल्टीप्लाई नहीं होते. रेशियोज जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंगल के साथ में. और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? कॉस स्क्वायर ए by cross multiplying and 1 plus sin a का whole square by doing this. Now you don't have to. अब next step क्या है? लॉजिकली सोचो. what we have to do? न्यूमरेटर एक्सपैंड करना है so that इसको हम किसी तरह छोटा करें. तो cos square a 1 plus sin square a है ना, cos a into 1 plus sin a. और यही गलती एग्जाम में होती है. ज्यादातर बच्चे ऐसे फंसते हैं. अरे भाई a प्लस बी का स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता, प्लस 2ab भी होता है. तो दिस एरर, इसको नोट करो, एग्जाम में गलती होगी. नोट, ठीक है ना? दिस इज वेयर यू गो रॉन्ग. ये टर्म छोड़ देते हैं. एंड नाउ व्हाट इज दिस cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a? टेल मी व्हाट इज दिस cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a? 1 एंड देन अगेन a 1, वो इसका है, एंड प्लस 2 sin a. Okay, so that is cos square a plus sin square a की जगह 1 and again a 1 and 2 sin a. and नीचे अभी कुछ करना ही नहीं है क्योंकि नीचे को तो कुछ करने लायक हमें है नहीं. एक्सपैंड मत किया करो. डिनोमिनेटर का रूल है इट शुड बी इन प्रोडक्ट फॉर्म, न्यूमरेटर शुड बी इन सम फॉर्म. ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जब करते हो ट्राई टू गेट न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर सम या डिफरेंस आ जाए एंड डिनोमिनेटर इस फॉर्म में. so you'll get 2 plus 2 sin a, okay, upon cos a into 1 plus sin a. So what are we getting common? 2. So what are we going to get here? 1 plus sin a, and here you go cos a and into 1 plus sin a. Now when you're cancelling, it's going to cancel this way. And what is 2 by cos? 2 sec a, right?
So that is the simple answer you get. So a lot of students were telling me to make a video on this. So I said I'll take out the most important ones. So the ones which I've selected are the ones which are commonly asked. And here few are complicated ones also. But the main thing is get to the focus of that basic of the method, right? So when you get that basic right, you will get identities मुश्किल नहीं होती भाई, तीन ही तो लगनी है, उसके अलावा है नहीं, और जब तक वो लगेंगे नहीं आंसर नहीं आएगा. So that is what you need to understand. Don't go randomly, it will come. देखो फोर्थ क्वेश्चन आराम से आ गया. Cool. चलिए आगे चले. You can again don't copy until unless it's need. मतलब don't copy in the sense देख के नहीं, बेयर देखे ट्राई करो. ये तो अब आपके पास वीडियो है, कभी भी जाके विजिट कर सकते हो. आइए भाई. ओ ये कैसा क्वेश्चन आ गया, साइन ए अपॉन दिस, और ये तो ये कोसेक और कॉट. देखो मेरे को ज्यादा समझ नहीं आ रहा, बट मेरे को जो समझ आ रहा है यहाँ कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है. एंड आई टोल्ड यू ए फंडा कि न्यूमरेटर को सम या डिफरेंस बनाओ एंड डिनोमिनेटर को सिंगल. अब जैसे मान लो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होता बच्चों, तो आप क्या करते? इसको सेपरेट करना बहुत इजी हो जाता, एकदम इजीली आप सेपरेट कर लेते, है ना. मतलब यू कुड हैव सेपरेटेड वेरी इजीली एंड इट वुड हैव बीन कोसेक ए माइनस कॉट ए. बट ऐसा नहीं है. सो दैट इज वाई इसका उल्टा है. तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे? टेल मी. हाँ, इसको उल्टा कर दो. उल्टा करने का मतलब है हाउ विल यू डू उल्टा? इसको ऊपर पहुंचा दो, तो उससे क्या होगा? सो नाउ लेट अस सी साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए करके. ठीक है. अब देखो, तो आप बोलोगे सर फायदा क्या है? फायदा यह है डिनोमिनेटर सिंगल हो जाएगा. क्यों सिंगल हो जाएगा अभी देखो. अब देखो इससे पहले आप नोट करो, दिस सेम टर्म वाज देयर नीचे, बट आई डिड नॉट मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर सम या डिफरेंस. नाउ द सेम टर्म देखो तो न्यूमरेटर में आ गया. अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा. क्यों करूंगा? क्योंकि न्यूमरेटर सम प्रोडक्ट नहीं, मतलब कि ऊपर हमको सम ऑफ 2 टर्म्स या 3 टर्म्स मिल जाए. डिनोमिनेटर सिंगल बना, a माइनस बी इंटू, हाँ जी, a प्लस बी. भाई नींद मतलब फोकस. देखो मैं बहुत ज्यादा भी नहीं करा रहा, 7-8 कराऊंगा बस, दैट इज इट. बट देन फोकस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, बाहर बहुत ठंड हो रही है, अराउंड 8 to 10 डिग्री. हाथ भी फ्रीज हो रहे हैं, मन ही नहीं करता है ना. खास करके सर्दियों में बोर्ड क्यों रखते हैं, है ना. रजाई में घुसे रहो, सुबह उठने का ही मन नहीं करता. और उसमें ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीज हो तो भाई नींद किसे नहीं आएगी. किसको देख के तो अच्छों की नींद पेपर में उड़ जाती है, और जब करने बैठो तो नींद आ जाती है ना. ये भी इंटरेस्टिंग चीज है. तो चलिए, ये तो बन गया. अब सिंगल क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? ये होता है साइन स्क्वायर. अब इसके बाद क्या करें भाई? वो कह रहा है स्प्लिट करो, 2 अलग अलग टर्म. तो स्प्लिट करके देखते हैं. जब स्प्लिट करेंगे, मैं यूजुअली ना एस बड़ा लिखता हूं साइन का, बुक्स में छोटा लिखा होता है, बट इट डजंट मेक अ डिफरेंस. ओके, साइन ए कॉस ए, इसको अलग कर देते हैं. इतनी देर से हम जुदा करने का काम ही तो कर रहे हैं भाई. 1 साइन ए एंड 1 साइन ए, खलास, कट, फिनिश, एंड दिस गॉन. सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? 1 बाय साइन ए कोसेक ए. And what are you going to get? Cot A. And this is the answer. Bingo. And trigonometric identities इतनी ही easy है अगर आप सोच के और आराम से चलो. न्यूमरेटर सम या डिफरेंस में लाओ, डिनोमिनेटर सिंगल, क्योंकि डिनोमिनेटर को मैं कभी भी स्प्लिट नहीं कर पाऊंगा. देखो a अपॉन a प्लस बी फॉर्म नहीं चाहिए, क्योंकि इससे है नहीं, उल्टा फॉर्म लाना है. ऊपर सम या डिफरेंस, नीचे ऐसे होना चाहिए. ठीक है ना. सो दैट इज व्हाट वी नीड इन दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए ये भी हमने कर लिया. ये इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि एज ए क्वेश्चन आ सकता है फॉर 2 मार्क्स, बट इट सॉल्व सो मेनी बिग क्वेश्चंस. मतलब आई हैवंट सीन एनी क्वेश्चन, और इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दूं या प्लस होगा. ठीक है ना.
ये प्लस होगा साइन 4a प्लस कॉस 4a इक्वल टू 1 माइनस दिस। अब पहले इसको समझते हैं करेंगे कैसे। यू मस्ट हैव स्टडीड, या आपने पढ़ा होगा दिस आइडेंटिटी। अब कुछ बोलेंगे सर ऐसी तो आइडेंटिटी हमें पढ़ा ही नहीं, कहां से आप लिखवा रहे हो। अरे भैया कुछ नहीं किया, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, इस 2ab को इधर ले आया मैं। समझ में आया? चलो अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर्ड ए होल स्क्वायर्ड cos square a whole squared. Now when you consider this sin square a, इसको सिंगल मान लो भाई, कोई a है उसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। So now what is the identity? a square plus b square. So what you will do? क्या होता है a plus b whole square. So now my a is what? This term plus b is what? This term इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2 sin squared a cos squared a. This is what the term is. So now a plus b whole square minus 2ab using this identity, a का स्क्वायर और ये मेरा b का स्क्वायर। तो ये a फिट कर दिया, ये b फिट कर दिया और ये, तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस 2 sin square a cos square a। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। n नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड दिस बीइंग यूज्ड। समझ में आ रहा है? अब मैं एक क्वेश्चन है नहीं मेरे इसमें, बट मैं आपको अभी दिखा दूंगा इसका इंपॉर्टेंट। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग स्टूडेंट्स टू डू दिस क्वेश्चन वेरी थरोली। अब देखो मेरे आइडेंटिटी में नहीं है, आइडेंटिटी तो मेरा अगला क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन मैं आपको एक एप्लीकेशन इस क्वेश्चन का दिखाई देता हूं कि आपको देखो ट्रिग्नोमेट्री में समझना है। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। सो लेट्स ट्राई टू टेक वन क्वेश्चन। सो से लेट्स से tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए cos x स्क्वायर ए माइनस 2। Now this question is not an easy one, मतलब अभी तो मैंने लिख दिया है, but it's not an easy question, okay? Now you will find that इसके अंदर जो इसका यूज है बहुत तगड़ा आने वाला है। कैसे आने वाला है अब आप देखो। साइन स्क्वायर ए और ये दो, मेनी स्टूडेंट्स स्टार्ट दिस बाय गोइंग टू कॉट एंड सेक कि सर tan स्क्वायर ए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए होता है, 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, और वो cosec स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। उसको भी मैं देखूंगा बाद में, पहले ये समझो आप कि हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है भाई, तो ये अच्छी बात है सर, हमने ऐसे लिख लिया, एकदम ठीक हो गया। अब क्या करेंगे एलसीएम। सो कम हियर, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया ना 4, एंगल यही रहता है, एंगल मत मल्टीप्लाई कर देना, अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। कितना हो गया ना। मोमेंट यू सी दिस, उस क्वेश्चन को तो 1000 बार कर लो और वो याद हो जाए भाई, कि जहां दिखे साइन 4a प्लस कॉस 4a सोचना ही नहीं है। अगर सोचा तो टाइम ही गया। स्ट्रेट अवे आई एम राइटिंग अभी। अब मत बोलना कैसे आया, अभी मैंने प्रूव किया था, पर एग्जाम में पूरा करना है। इसके जगह हमने लिख दिया ये, और कैसे लिखा, आई जस्ट डिराइव्ड इट। एग्जाम में you have to do that step, but moment you see sin 4a plus cos 4a attack it, बस वही way out है। Where did this come from? From here। पर एग्जाम में मत लिख देना already, you have to prove this step, okay? So instead of sin 4a plus cos 4a you will write this, okay? Now यहां आ जाते हैं। तो अब फिर वो जुदा वाला काम हो गया। जुदा क्यों करना है भाई, देखो ना आंसर ऐसे है, और देखो डिनोमिनेटर सिंगल, न्यूमरेटर सम या डिफरेंस, एकदम सही जा रहे हैं। 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है जी, सेक साइन स्क्वायर ए, एकदम ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये आ गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है जी, सेक स्क्वायर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 तो ले लिया,
इसके अरे वन तो मल्टीप्लाई में जितने मर्जी हो जाए, हमारे लिए क्या है, वन अपॉन दिस इंटू, यहां भी तो वन ही है, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर, वो हो गया कोसेक स्क्वायर है, और ये -2। देखो क्वेश्चन भी क्रिएट किया, उसका यूज भी दिखा दिया, एंड दिस इज हाउ सिंपल द ट्रिग्नोमेट्री इज। आपको भी थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा नहीं सोचो यार, बस थोड़ा सा अगर सोचोगे तो इसी तरह से मैथ्स चुटकी में मस्ती से हो जाएगी। एंड विंटर्स है ना, थोड़ा चाय कॉफी साथ म्यूजिक लगाया करो, ये नहीं कि लाउड म्यूजिक, फिर पेरेंट्स के कैसे सर हैं क्या बता रहे हैं, हल्का सा म्यूजिक एंड मेक इट इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। अब जैसे हम खाने वाने जाते हैं ना, तो टेरेस पे लाइट होनी चाहिए, कैंडल लाइट, म्यूजिक, तो एक माहौल बनता है ना खाने का। अरे भाई मैथ्स के लिए भी माहौल बनाया करो, बुरी तरीके से मत किया करो, ठीक है ना। ये है ट्रिग्नोमेट्री की कहानी, आइडेंटिटी, ये भी कहते हैं हमें प्यार से करो और मजा आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ चलो चलो, फर्स्ट यू कॉपी दिस, ओके। I accidentally took a page, no problem, I'll go back. So my next question on the board was this, ठीक है ना। So tan square a, this is a very important question, बोर्ड में आया हुआ है और इसमें इतनी गलतियां करते हैं बच्चे, 0 पाके आते हैं। प्लीज नोट इट, very important question. This is the question which was there, मैंने उस क्वेश्चन की जगह ऑलरेडी वो पेज यूज कर लिया था, so that was it, right? So now let's see this question and go about it. There is nothing to guess, right में साइन है और लेफ्ट में tan है, तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। तो भाई tan है तो स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर लगा दो और एंगल लिख दो, एंगल के साथ स्क्वायर नहीं लगाते। tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, कॉस लिखो, यहाँ स्क्वायर है तो मेरा भी स्क्वायर आ गया। और इसमें भी यही करनी है कहानी, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है जी। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री की कहानी हमारी जुबानी। अब क्या करना है, वो दिख रहा है मुझे एलसीएम ये है, मेरे बच्चे जानते हैं क्या करते हैं इसके बाद, ओ ला कहते हैं सर हैंस प्रूफ्ड, ये लिखा और लिखते हैं हैंस प्रूफ्ड, और एग्जामिनर भाई साहब कहते हैं हैंस कट, और ये 0 दे देते हैं, समझे। हाँ सोच रहे हैं कि क्यों ऐसे बोल रहे हो सर, ये सही तो है, सही नहीं है भैया, आप समझो गलती क्या की, ब्लंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए एलसीएम में cos स्क्वायर ए नहीं है, cos स्क्वायर बी है। तो जब मैं एलसीएम लूंगा, बात को समझो इधर प्लीज अंडरस्टैंड, ये cos स्क्वायर ए से कटा तो cos स्क्वायर बी बचा ना, तो वो इससे क्रॉस, ये देखो मल्टीप्लाई होगा, सो यू हैव टू राइट साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी, और ये भाई साहब इधर मल्टीप्लाई होंगे, cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बात समझ में आई, ये गलती है, आंसर तो वही आएगा पर तरीका ये नहीं है, तो इसीलिए 0 मिलता है। एंड दिस क्वेश्चन इज बीइंग रिपीटेड इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना, इसका प्रूफ। सो नाउ आरएचएस किसके टर्म में, ये तो मेरा आ गया, छोड़ दो इसको, मत टच करना। न्यूमरेटर में सब साइन है, तो सब साइन है तो हम भी साइन में आ जाते हैं, है ना भाई। आइए हम लोग, अरे बाबा रे, बस आइडेंटिटी ज्यादातर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है, मदद तो वही आइडेंटिटी की, सब डिराइव तो वहीं से हुआ है, सब बाई प्रोडक्ट है, बाकी तो हम बना देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, और वो एक्चुअल तो आइडेंटिटी वहीं से आई है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना बाबा, जस्ट साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, इरेजर भाई साहब आइए, पेन भाई साहब आइए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये तो इनका हो गया, माइनस इसको लिख रहा हूं, पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लें ताकि आराम से, कि अगर वो कंफ्यूज होते हो तुम एक साथ सब करते हो, इसको साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। चलो जी इतना समझ में आ गया, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस अपनी जगह ही है, ये साइन स्क्वायर बी माइनस दिस, सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा ये माइनस साइन,
तो माइनस साइन स्क्वायर बी, मेरे पास जगह नहीं है बोल के ऐसे लिख रहा हूं यहां भाई, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर को तो कुछ करना ही नहीं है ना, वो तो आ गया, जो आ गया उसको कुछ नहीं करना। सो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, दिस एंड दिस खल्लास और कैंसिल, एंड क्या बचा, आंसर आ गया आपका। तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, गुस्सा मत किया करो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के साथ, धीमे धीमे हौले हौले चलोगे ना तो बस धीमे धीमे सारे क्वेश्चन होंगे, एकदम बनाते जाओगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे, पता भी नहीं लगेगा। देखो कितने आराम से हमने क्वेश्चंस किए। अगेन डू इट ऑन योर ओन, ठीक है ना। So that is what I need. So in my part 2 video, I'll get you more complicated ones. The identity, I did the basic part today. I'll just see if any complicated one or the basic one is left. I'll touch, otherwise complicated one I'll post in the video too. So this is what the solution, and you may have one more question. अगर इसको cos में दे देते तो obviously फिर हम यहाँ cos में कर रहे होते, and even a question can come cot square a minus cot square b. तो इस तरह से क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने कर ही दिया आपको, ये कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं। सो व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू get you more identities, right? So we'll try to get you more identities soon so that you actually enjoy doing maths, ठीक है ना। So tell me any doubts you have, any suggestions if my speed was a little fast, or communication you want in Hindi, English, anything. So you do that and keep watching, and I'll get you more important identities and other chapters for your board exams. That's it. Signing off, Keshav Agarwal for the time being. Bye. Happy learning.